Good morning students, I welcome you all in the digital classes of Orion Academy, and today we will be discussing the topic from history subject from social science for class 4. The subject is history and the chapter name is Harappan civilization. What is the name of the topic? Harappan civilization. Like in third class in history, kids, you have studied about how the human civilization it came on the earth. Then gradually we started developing and we started settling at one place. Okay, कैसे हमारी लाइफ शुरू हुई, ये सारी चीज़ें we have studied in third class. अभी we have to study about the फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑन द अर्थ, जो इंडियन सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है जहाँ से, वो हमको पढ़ना है. नाउ दैट इज हरप्पन सिविलाइजेशन एंड दिस इज द नेम ऑफ आवर टॉपिक एंड वी विल बी डूइंग दिस थिंग. I will read it out for you, then I will explain. Okay, you have to open page number 234. Page number 234. This is your semester book, semester 1, and page number 234, Harappan civilization, you have to open. Now I will read it out for you. The Harappan civilization. You already know about the Bronze Age civilizations that existed about 5,000 years ago. The Harappan civilization was the first civilization in India. The remains of this civilization were buried underground near river Indus till that area was dug up by archaeologists. In 1920s, the ruins of two cities were uncovered which were named Harappa and Mohenjo-daro. Later, they discovered many more cities and artifacts. Now what happened that due to any reason the previous civilization they left from the earth, and what happened to them we don't know. But after when we were digging up, we were cleaning the earth, some ruins and some ruins remains. Okay, we could see in the earth. जब हम खुदाई कर रहे थे तब हमें पता चला कि अर्थ के अंदर से कुछ चीजें निकली. ओके, दे आर नोन एज आर्टिफैक्ट. They are known as artifacts. Now, what is the meaning of ruins and remains? Ruin means किसी चीज का खराब हो जाना, खत्म हो जाना. Okay. Then remains means the leftover part of anything. किसी चीज का बचा हुआ पार्ट, the leftover part. तो जब हम खुदाई कर रहे थे किसी भी रीजन से, सपोज वहाँ पे आपको बिल्डिंग बनाना था, टेम्पल बनाना था, या फिर वहाँ पे आपको एक पॉन्ड बनाना था, एक तालाब खोदना था, तो उसके लिए जब खुदाई करने लगे तो वी स्टार्ट गेटिंग समथिंग फ्रॉम द अर्थ. उसमें से हमें चीज़ें मिलनी शुरू हो गई. तब हमको पता चला ओके, यहाँ पर काफ़ी साल पहले so many years back यहाँ पे लोग रहते थे, या यहाँ पे बहुत बड़ी एक सिटी थी. ठीक है. ruins means वहाँ जो छोटी छोटी मूर्तियाँ मिली हैं, आइडल्स मिले हैं, पॉट्स मिले हैं, बर्तन मिले हैं, कॉइन्स मिले हैं, तो वो कुछ खराब कंडीशन में हैं, टूटे हुए हैं. दे आर नोन एज ruins. एंड remains means कि कुछ जो बचा हुआ उनका पार्ट है, दैट इज नोन एज remains. Okay, then artifacts. What is the meaning of artifacts? Means those idols, जो मूर्ति हैं वहाँ पे, या फिर कुछ ऐसे coins हैं, ये सारी चीज़ें जो बनी हुई थी, बहुत साल पहले बनी हुई थी और जो अभी तक सही सलामत हैं. They are known as artifacts, जिनसे हमें पता चलता है कि we know कि हमारे जैसे लोग भी उस टाइम पर रहते थे, but how they lived, okay, how they were living their life,
व्हाट वाज देयर लाइफस्टाइल, वो लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, दिस थिंग येट टू बी डिस्कवर्ड, ये हमको अभी भी डिस्कवर करना है। तो 1920 में जब इस तरीके का एक्सकेवेशन या खुदाई चल रही थी, तब हमें जो रिमेन्स या रुइंस मिले और जो आर्टिफैक्ट जमीन के अंदर से मिले, उससे हमें पता चला कि देयर वर 2 cities, they were buried under the earth। 2 cities हमको मिली जो कि जमीन के अंदर छुपी हुई थी। One was हरप्पा and another was Mohenjo-daro। Okay, what was the name of the 2 cities? Harappa and Mohenjo-daro। Mohenjo-daro and Harappa। So in this first paragraph we studied about that when we discovered these things from the earth and the name of the 2 cities Harappa and Mohenjo-daro। Then 3 important terms: ruins, remains and artifacts। Then we will move on the second paragraph, that is Harappan settlement। Okay, what is the name of the topic? Harappan settlement। Harappan settlement। Now I will read it out for you, then I will explain it to you। Harappan settlement, the civilization spread over a vast area covering northwestern India and modern day Pakistan। The civilization developed along the banks of river Indus and thus came to be known as Indus Valley Civilization। Some important cities of these civilizations were Lothal, Kalibangan, Dholavira and Ropar। Now what this paragraph is saying to us, that the Harappan civilization, it was spread in a vast area, बहुत बड़े एरिया में ये फैली हुई थी। और सबसे बड़ी बात, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, आपको पता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया किस तरफ आता है? दिस विल बी नॉर्थ, दिस विल बी वेस्ट, दिस विल बी ईस्ट एंड दिस विल बी साउथ। तो नॉर्थ वेस्ट एरिया मीन्स इस जगह पर अगर आप इमेजिन करेंगे इंडियन मैप को, तो आपको यहाँ पर कौन कौन से स्टेट्स दिखाई देते हैं? राजस्थान, गुजरात, ओके, नॉर्थ में यू हैव उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ऊपर जाएंगे और जम्मू एंड कश्मीर, लाइक दिस। तो नॉर्थ वेस्ट में मोहनजोदारो एंड हरप्पन सिविलाइजेशन वी कैन गेट। अब वहीं से अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो जब हमारा बॉर्डर खत्म हो जाता है, व्हेन द इंडियन बॉर्डर इट इज क्लोज, वहां से हमारी जो बॉर्डर शुरू होती है, जो टच करती है, वो किससे करती है? पाकिस्तान से। ओके, दिस इज आवर नेबरिंग कंट्री। किससे टच करती है? पाकिस्तान से। और वहीं पर एक नदी है जिसका नाम है इंडस। क्या कहती है? क्या रिवर का नाम है? इंडस, या इसको हम हिंदी में सिंधु नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु नदी। इन इंग्लिश इंडस रिवर। तभी इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ओके, कभी आपने सोचा है कि हमने लाइक इन 3rd क्लास ऑल्सो भी स्टडीड कि जो भी हमारी सिविलाइजेशन थी प्रोमिनेंट, वो नदी के किनारे ही थी। अभी ये मोहनजोदारो एंड हरप्पन सिविलाइजेशन, दे आर ऑल्सो नियर बाय द रिवर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फॉर लाइफ व्हाट इज एसेंशियल? द वाटर इज एसेंशियल। बहुत ज़रूरी है पानी जीने के लिए। आप एक डेजर्ट में या रेगिस्तान में आप नई लाइफ लीड कर सकते हो। यू आर नॉट एबल टू लिव देयर, ओके, बिकॉज जहाँ पे वाटर होगा वहाँ पे फूड अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। ओके, जहाँ पे वाटर होगा वहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा होगी। ठीक, और इसलिए जो भी सिविलाइजेशन हम देखते हैं वो मोस्टली कहाँ पर डेवलप हुई है?
they are on the banks of river. So Harappan civilization, where it flourished? In the banks of Indus river. Okay, और इंडस रिवर को हिंदी में क्या कहते हैं? सिंधु रिवर, इसका नाम सिंधु रिवर है। तो ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों में है, तो इंडिया से होते हुए ये पाकिस्तान जाती है, और उसके बाद क्या होता है, इसका जो कुछ पोर्शन नाउ वी हैव इन पाकिस्तान। नाउ what happened, that's why this Harappan civilization, it is also known as Indus Valley civilization. अब उस टाइम पे वहाँ पे किस किस जगह पर ये सिटी, कौन कौन से सिटीज थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आते हैं? तो फर्स्ट वॉज लोथल, ओके, फर्स्ट वॉज लोथल, देन कालीबंगन, देन धौला वीरा, एंड लास्ट वन वॉज रोपर। आपने ये नाम सुना होगा, रोपर। सो अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड नाउ, दैट हड़प्पन सेटलमेंट वो कहाँ कहाँ पे था, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो कहाँ कहाँ पे रहते थे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग सबसे पहले कहाँ पे आए? इंडस वैली, इंडस रिवर के वहाँ पे उन्होंने रहना शुरू किया, और इसका कुछ पोर्शन पाकिस्तान में है, कुछ इंडिया में है। इसके बाद द मेन सिटीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, रोपर, लोथल, कालीबंगन एंड धौलावीरा। ओके, दीज वर द 4 cities. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है इसको। ओके, सो फॉर टुडे these 2 paragraphs we have covered, and tomorrow we will be covering the next 2 paragraphs. Okay, if you have any doubt in this video, you can call me and ask me. I will resolve your doubts. Thank you so much.